Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Again, I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you all are aware about the latest pattern that has been issued by the CBSE for the session 2020 and 21. In that, you will find questions related to case study based type. So yes, in this video, we are going to discuss some case study based questions from the chapter Database Concepts and MySQL. If we will talk about your computer science subject, so in that you will find two case study based type questions, one from the chapter MySQL and one from the chapter that is file handling, and another one is from the networking chapter. For case study based questions of networking that I have already uploaded, for that you can refer my playlist of computer networking, and in this video we are going to discuss some important case study based questions of the chapter Database Concepts and MySQL. So before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. So let's start now. So as you can see, I have written some instructions here from your sample paper which was issued by the CBSE. Your CS paper will be divided into two parts, part A and part B, and section 2 of part A. You will find two case study based type questions beta, and each case study based questions contain 5 parts, and out of those 5 you have to attempt any 4 parts. Okay. सो आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, उसमें आपको लाइक समथिंग डिस्क्रिप्शन या कुछ सिचुएशन गिवन होगी बेटा. सो आपको उसको अच्छे से रीड आउट करना है एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. तो रीड आउट दिस क्वेश्चन. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अ डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर is considering to maintain their inventory using SQL to store the data. As a database administrator, Abhay has decided the following. What he has decided? That the name of the database is MyStore, name of the table is store, और ये attributes given है बेटा store table के, like item number, item name, S code, quantity. ये description आपको given है. ओके. अब नेक्स्ट देखिए, हमें ये टेबल गिवन है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर एज द प्राइमरी की. अब इस टेबल में से बेटा आपको बताना है कि बेस्ट सुटेबल प्राइमरी की कौन सी है. एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की. अब प्राइमरी की आइडेंटिफाइज ईच रो ऑफ अ टेबल यूनिकली. जो हर एक रो के लिए क्या होगी बेटा, वो यूनिक होगी. सो इफ यू विल टॉक अबाउट दिस टेबल, ये हमारे कॉलम के नेम्स हैं बेटा. आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड एंड क्वांटिटी. इसमें जो आपका आइटम नंबर है, आइटम नेम्स रिपीट हो सकते हैं, एस कोड इज रिपीटिंग, क्वांटिटी भी आपकी रिपीट हो सकती है. तो बेस्ट सुटेबल पूछा है बेटा. सो बेस्ट सुटेबल प्राइमरी की जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज आइटम नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल स्टोर. और डिग्री और कार्डिनलिटी में कुछ स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन रहती है बेटा. ये तो पता है एक में नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं, इन अनदर वन यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स. बट ये भूल जाते हैं कि डिग्री में रोज काउंट करने हैं कि कॉलम काउंट करने हैं. सो टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ टेबल यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड फॉर कार्डिनलिटी यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज. ठीक है. अगेन द इजी पार्ट. सी दिस इज द टेबल. कॉलम्स काउंट करने हैं टू फाइंड द डिग्री. 1, 2, 3 and 4. टोटल कॉलम्स आर 4. सो दैट मीन्स जो आपकी टेबल है बेटा, इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 4. एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द कार्डिनलिटी, तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोज. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल इज 7. टोटल रोज कितनी हो गई बेटा, 7. और एक चीज ध्यान रखनी है, वाइल फाइंडिंग आउट द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल, आपको हेडर रो को काउंट नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा रिकॉर्ड गिवन नहीं है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एट्रीब्यूट्स आइटम नंबर,
item name and escort respectively in the given table store. अब देखो अगर हम स्टोर टेबल की बात करें तो इन दैट वी आर हैविंग 4 कॉलम्स, आइटम नंबर, आइटम नेम, एस्कॉर्ट एंड क्वांटिटी. और जो वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है बेटा वो कहाँ कहाँ इंसर्ट करनी है, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड एस्कॉर्ट. अब इसका सिंटेक्स क्या रहेगा बेटा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, then you have to write the name of the columns, then values, and here the values are given to you. यही सेम वैल्यूज आपने लिखनी है बेटा जिसकी डेटा टाइप varchar है. मेक श्योर टू पुट द वैल्यू विद इन कोट्स. अगर सपोज मुझे 4 कॉलम्स गिवन होते बेटा, ठीक है, मुझे चारों में वैल्यूज पुट करनी है, सो हम इस चीज को स्किप कर सकते हैं. बट अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में ही वैल्यू फिल करनी है, in remaining columns by default it will take null values. Let me show you this practically. Let's open one database, use employee, select star from table name. ये टेबल है बेटा एम्प्लॉय नेम से, ठीक है. अब इसमें क्या गिवन है, लेट मी शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेबल. अब इसमें देखो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, नन. नाउ सपोज इफ आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ ई नंबर एंड सैलरी ओनली, ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू राइट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय एंड देन इन ब्रैकेट आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स जिसकी मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ बेटा, ई नंबर एंड सेकेंड सपोज आई एम एंटरिंग सैलरी, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वैल्यूज. तो हियर एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू बेटा 113 तक ऑलरेडी है, लेट्स राइट 114 एंड देन वी हैव टू राइट सैलरी, ठीक है. क्वेरी ओके. अब जब हम ये टेबल डिस्प्ले कराएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अब बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा बेटा, बाकी कॉलम्स में वैल्यूज क्या ले ली बेटा, नल, जिसमें हमने एंटर नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, नल. तो अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में ही वैल्यू इनपुट करानी है, सो फॉर दैट माय सिंटेक्स इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स जिसमें आपको वैल्यूज इंसर्ट करानी है, देन यू हैव टू राइट द कीवर्ड वैल्यूज और उसके बाद आपने जो वैल्यूज इंसर्ट करानी है वो लिखेंगे बेटा. तो सेम आपका यही सिंटेक्स है. नाउ सी, अभी वांट्स टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माई स्टोर. इसमें आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि राइट अ कमांड टू रिमूव द टेबल, नो, ठीक है. अभी वांट्स टू रिमूव द टेबल, अब मुझे दैट मीन्स टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है. टेबल नेम इज स्टोर एंड नेम ऑफ द डेटाबेस इज माई स्टोर. और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट इज बेटा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप डेटाबेस एंड डिलीट स्टोर फ्रॉम माई स्टोर. अब आपको इसके लिए क्या करना है बेटा, जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपकी जितनी भी कमांड्स हैं, ऑल्टर, अपडेट, जितना आपका MySQL में सारी क्वेरीज हैं, वो आपकी वहां पर 1 मार्क में आ सकती है, ठीक है. किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सी कमांड अप्लाई होगी, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ आई हैव टू डिलीट द टेबल. फॉर दैट द करेक्ट सिंटेक्स इज ड्रॉप टेबल नेम, और टेबल नेम क्या गिवन है बेटा, स्टोर, तो सिंटेक्स इज ड्रॉप टेबल नेम. Now fifth part, Abhay wants to display the structure of the table. Store, that means उसको क्या क्या चाहिए, name of attributes और उसके data types. तो उसके लिए हमारे पास है बेटा describe and then you have to write the name of the table. Or you can write DESC, describe and then name of the table. Both syntax are correct. ठीक है, ये हमने इसको practically भी किया है अभी to display the structure of a table. Now next question. जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया ये आपके सैम्पल पेपर का ही था. बेस्ड ऑन दैट आई हैव फ्रेम्ड सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर MySQL. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ CD DVD शॉप नेम न्यू डिजिटल शॉप स्टोर्स वेरियस CDs एंड DVDs ऑफ सॉन्ग, एल्बम, मूवीज टू एंड यूजिंग SQL टू मेंटेन द रिकॉर्ड. अब जो डिटेल्स गिवन है बेटा, नेम ऑफ डेटाबेस CD शॉप, नेम ऑफ रिलेशन गिवन इज लाइब्रेरी, और ये एट्रीब्यूट्स गिवन है बेटा, CD नंबर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नेम कैरेक्टर वैल्यूज है, साइज 25,
quantity numerical values and price decimal values. Decimal values beta in points. And this is the library table given to you. Now first question, write the degree and cardinality of the relation library. Now you can easily identify. Degree means number of columns, 1 2 3 4. So degree is beta 4. And cardinality, you have to count number of rows. So you have to count this 1 2 3 4 5 and then 6. So cardinality is 6. Now next question, identify the best attribute which may be declared as a primary key. So primary key इसमें से कौन सा होगा बेटा? CD नंबर. आपको टेबल में से वो कॉलम आइडेंटिफाई करना है जिसकी वैल्यूज क्या होंगी बेटा? यूनिक होंगी. नाउ थर्ड पार्ट, इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द अबव रिलेशन. अब देखो कितनी वैल्यूज गिवन है बेटा? 1 2 3 एंड 4 और कॉलम्स भी मेरे कितने हैं? 4. That means I want to insert the values in each column. So either you can write the name of all the columns here or you can skip that because अब तो मुझे सारी कॉलम में वैल्यूज लिखनी है. So syntax will be insert into table name values. ये वैल्यूज गिवन है बेटा 10009 motivational songs 15 and 70. You just have to write the syntax. Now next is write an SQL query to display the minimum quantity. अब minimum find out करने के लिए which aggregate function we are having? min. और क्या find out करना है बेटा? minimum quantity. अब quantity आपने complete नहीं लिखना, you have to check the name of the column. अब quantity का column name क्या है बेटा? QTY. So here you have to write the min or QTY from table name, that is library. Now last part बेटा, database administrator wants to update the price of a CD from null to 150. That means जहाँ जहाँ पर प्राइस नल है मुझे वहाँ पर क्या सेट करना है? प्राइस 150 सेट करना है बेटा. सो द करेक्ट सिंटेक्स इज अपडेट टेबल नेम लाइब्रेरी सेट. मीन्स जिस कॉलम की वैल्यू को आपने चेंज करना है, सेट प्राइस इक्वल्स टू जो न्यू वैल्यू आपने सेट करनी है बेटा 150. वेयर कहाँ पर सेट करनी है? कंडीशन लिखेंगे वेयर प्राइस इज नल. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. नाउ लेट सपोज जहाँ पर हमारा कमीशन नल है, ठीक है, वहां पर हम सेट कर देते हैं 150. तो अपडेट टेबल नेम EMP सेट. दिस इज द कीवर्ड जिसके आगे मुझे कॉलम की वैल्यू सेट करनी है. कॉलम नेम क्या है बेटा? कमीशन. क्या सेट करना है? लेट सपोज 150 where commission is null. ठीक है, दैट मीन्स जहां पर कमीशन की वैल्यू नल है मुझे वहां पर क्या करना है? अपडेट करना है. अब 4 रोज मैच आ गया, क्वेरी ओके. अब हम अपनी टेबल्स चेक करेंगे. ठीक है, नाउ सी हियर, जहां जहां पर हमारा कमीशन नल था बेटा वहां पर मेरी वैल्यू क्या हो गई है? 150. ठीक है, 4 रोज इफेक्ट हो गए एंड इज नल ऑपरेटर भी आपका इसमें रिवाइज हो गया. अगर मुझे नल वैल्यूज कंपेयर करनी है, फॉर दैट वी आर हैविंग इज नल ऑपरेटर. ठीक है, अगर रिवर्स होता बेटा जहां पर प्राइस नल नहीं है तो वहां पर हम क्या लिख देते? वेयर कमीशन इज नॉट नल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस यूजिंग SQL टू स्टोर द रिकॉर्ड्स. अब इसमें मैंने कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं बेटा. नाउ सी, टेबल ट्रांजेक्ट इज गिवन टू यू विद कॉलम नेम्स TR number, A number, amount, type and DOT. DOT date of transaction. ठीक है. Now we are having our database administrator with name Shashank. He has decided the following. Name of database is MyDB. Name of relation transact. Attributes कौन कौन से बेटा टेबल में? TR number, character values of size 5. This we have to set it as a primary key. A number numerical values, amount numerical values. Type जो कॉलम है बेटा, it can accept only 2 values, deposit and withdraw. इसमें थर्ड वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करनी है. And DOT values of type date. ठीक है. Now see the first question. Write the syntax to
क्रिएट द टेबल। अब दैट मीन्स मुझे ये टेबल क्रिएट करनी है, इसका सिंटेक्स लिखना है। अब उसके लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा टेबल क्रिएट करते टाइम, कि टी आर नंबर को तो मुझे क्या सेट करना है बेटा, प्राइमरी की। ANO और अमाउंट इंटीजर वैल्यूज है तो इसकी डेटा टाइप हम इंट ले लेंगे। अब जो टाइप कॉलम का नेम है बेटा, इट कैन एक्सेप्ट ओनली 2 वैल्यूज, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। दैट मीन्स इसमें मुझे क्या लगानी पड़ेगी बेटा, चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या गिवन है बेटा, ट्रांसेक्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब फर्स्ट कॉलम देखो बेटा, TR नंबर। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज ऑफ साइज 5, TR नंबर, इसकी डेटा टाइप हम ले लेते हैं बेटा कैर, साइज कितना गिवन है 5, प्लस इसको मुझे क्या सेट करना है बेटा, प्राइमरी की। ये हमने प्राइमरी की सेट कर दिया। नेक्स्ट कॉलम है बेटा ए नंबर एंड अमाउंट, दोनों में हमारी कौन सी वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है। सो ANO, हियर आई एम राइटिंग इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी। सेकेंड इज योर अमाउंट, इसमें भी आपके इंटीजर वैल्यूज है बेटा। नेक्स्ट देखो जो आपका टाइप कॉलम है, टाइप पर मुझे क्या लगानी है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई होगी। दैट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट ओनली वैल्यूज विदड्रॉ एंड डिपॉजिट। अब उसको कैसे लिखेंगे बेटा, टाइप, दैट मीन्स नेम ऑफ योर कॉलम, देन इट्स डेटा टाइप, फिर चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट्स आप लिखोगे बेटा ब्रैकेट में, यहाँ पर हम सिंटेक्स लिखते हैं। ठीक है, चेक टाइप इन। अब यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे रही हूँ कि वो इसमें से कोई भी वैल्यू हमारी हो सकती है। ऐसे अगर सपोज इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है कि अमाउंट के लिए लेट सपोज आई एम राइटिंग बिटवीन 40,000 एंड 80,000, तो हम ये सिंटेक्स पे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे किसी कॉलम पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है कि इट विल एक्सेप्ट ओनली दीज वैल्यूज और इन द रेंज ऑफ दोज वैल्यूज, सो वी हैव टू अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट। सो हियर व्हाट वी हैव टू राइट, नेम ऑफ द कॉलम टाइप एंड देन इट्स डेटा टाइप varchar। यहाँ पर हम साइज ले लेते हैं, लेट सपोज 15। अब उसके बाद मुझे क्या लिखनी है बेटा, चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट आप ब्रैकेट में लिखोगे, फिर आपको कॉलम का नेम लिखना है टाइप इन। ये इन कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है बेटा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए। अब हियर आई एम राइटिंग विदड्रॉ एंड देन डिपॉजिट, इट विल एक्सेप्ट ओनली दीज 2 वैल्यूज। ये आपकी चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई होगी बेटा। ठीक है, ब्रैकेट्स कौन कौन सी क्लोज होंगी, 2 ब्रैकेट्स क्लोज होंगी बेटा, एक ये वाली होगी और एक ये चेक कंस्ट्रेंट वाली। सो एक और क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट कॉलम कौन सा बेटा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें आपने किस टाइप की वैल्यूज एंटर करानी है, डेट टाइप की। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। नाउ इट विल शो क्वेरी ओके। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, डिस्क्राइब एंड देन नेम ऑफ द टेबल, दैट इज ट्रांसेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया, प्राइमरी की हमने इसको सेट करा था। ठीक है, ये आपकी इसकी इंटीजर डेटा टाइप आ गई एंड प्लस ये आपकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमने डिफॉल्ट जो हमने डेट टाइप सेट की है। और इसका फॉर्मेट क्या रहता है बेटा, वाई मीन्स ईयर, मंथ एंड डेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन यही था बेटा आपका। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना था, राइट द सिंटेक्स टू क्रिएट द टेबल, दैट वी हैव रिटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, can we consider ANO as a primary key? Can we consider ANO as a primary key? Justify your answer. अब पहले मैं ANO कॉलम को चेक करूँ, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है बेटा, ANO 101, 103 and then 103 and 101 are repeating. That means we cannot set this column as a primary key because values are not unique, and for primary key our values must be unique. So you have to write, justify your answer भी लिखा हुआ, so you have to mention the reason also कि no, we cannot consider ANO as a primary key as it cannot be used to identify the rows uniquely. उसमें values repeat हो रही हैं. Now next question, help Shashank to display all the records from the table transact. सारे records display कराने, that means select star from transact and arrange in such a way that value having highest amount will be at the top. Highest to lowest जाना, that means amount को order करना है और किस order में करना है बेटा, descending order में.
तो व्हाट विल बी माय क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ट्रांजैक्ट ऑर्डर बाय अमाउंट DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटा, डिसेंडिंग में जो हाईएस्ट अमाउंट होगा दैट विल बी एट द टॉप, इस अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे बेटा, अरेंज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक वांट्स टू डिलीट द कॉलम DOT, राइट द क्वेरी ही विल हैव टू यूज। ठीक है, इससे डिलीट करने से पहले वो इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, आपको चेक कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिकल यूज भी पता लग जाएगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम ट्रांजैक्ट एंड देन वैल्यूज, उसके बाद TR नंबर में वैल्यू, लेट सपोज आई एम राइटिंग T01, A नंबर 101 एंड देन अमाउंट लेट सपोज 25,000। टाइप में हमने लिखा बेटा विड्रॉ और डिपॉजिट, यही टू एक्सेप्ट करेगा बेटा। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक ईयर, देन मंथ एंड देन डेट। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM ट्रांजैक्ट, ये एक रिकॉर्ड मेरा आ गया। ठीक है, अब अगर सपोज आई एम राइटिंग यहाँ पर T01 को आई एम चेंजिंग इट टू 202 एंड हियर सपोज आई एम राइटिंग सेविंग्स, विल इट एक्सेप्ट? नो, बिकॉज चेक कंस्ट्रेंट इट विल एक्सेप्ट ओनली विड्रॉ एंड डिपॉजिट वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वी हैव टू डिलीट द कॉलम, सो फॉर दैट कमांड इज ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम एंड देन कॉलम नेम DOT। तो ये आपका कॉलम क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप। और इसके सिंटेक्स में बेटा दिस कॉलम वर्ड इज ऑप्शनल, you can either write alter table name drop column name directly, or you can write alter table name drop column name, both are correct। ठीक है, आई होप आपके साइड बाय साइड कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ ही वांट्स टू सी द एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल अलोंग विद इट्स डेटा टाइप। तो कौन सी क्वेरी यूज होगी बेटा, डिस्क्राइब DESC एंड देन नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, अब इसमें हमारा DOT जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉलम था दैट इज बीन डिलीटेड नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल नेम्ड VVPS मेंटेन्स अ डेटाबेस स्कूल दैट कंटेन्स मेनी टेबल्स। वन ऑफ द टेबल्स इज स्टूडेंट एज शोन बिलो, ये टेबल है बेटा। रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स, दीज आर द कॉलम्स। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। अब इस टेबल की अगर हम बात करें तो इन दैट वी आर हैविंग रोल नंबर वैल्यूज यूनिक है बेटा, तो वी कैन कंसीडर रोल नंबर एज अ प्राइमरी की। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी दैट यू विल डू नाउ। डिग्री मीन्स टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कार्डिनलिटी मीन्स टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write SQL query to add one more column piece of decimal data type। अब मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है बेटा। For that the syntax is alter table name and the name of my table is student, add again that column word is optional, fees। अब यहाँ पर आपको कॉलम का नेम क्या गिवन है बेटा, फीस, तो we have to take that name। और डेटा टाइप भी गिवन है डेसिमल, जैसे फ्लोट होता है वैसे हमारी डेसिमल डेटा टाइप है, इन दैट द प्रिसीजन इज हायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, द मैनेजमेंट विशेस टू इंक्रीज द फीस फ्रॉम न्यू सेशन बाय 5%। नाउ आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फीस फ्रॉम न्यू सेशन, और कितनी इंक्रीज करनी है बेटा, 5%। विच कमांड विल दे यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फर्स्ट देखो, अपडेट टेबल नेम, सेट फीस इक्वल्स टू फीस इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये सारी कमांड से रखिए। लेट मी शो यू ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, अब जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, अपडेट टेबल नेम, सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस फीस इंटू 5/100। ठीक है, मुझे क्या करना है बेटा, 5% इंक्रीज करनी है। ओरिजिनल फीस जो ये होगी वो तो हम ऐड करेंगे प्लस फीस इंटू 5 डिवाइड बाय 100। इसकी अगर हम कॉलम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें सिंटेक्स गलत है बेटा। सेट फीस इक्वल्स टू, इसमें हमारे को टेबल नेम नहीं गिवन बेटा, अपडेट
टेबल नेम नहीं गिवन हमारे को फोर्थ ऑप्शन में। और इसमें बेटा फाइंड आउट करो क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में चेंज कीवर्ड हम नहीं यूज करते हैं बेटा अपडेट करते टाइम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या मिस्टेक है, अपडेट टेबल नेम सेट फीस इक्वल्स टू फीस इंटू 5/100, ये तो सिर्फ उसका 5% कैलकुलेट हो जाएगा, हमें उतने से उसमें इंक्रीज करना है, तो दैट मीन्स सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस फीस इंटू 5%, और यू कैन सिंपली राइट अगर यहाँ पर 0.05 भी होता तो दैट ऑल्सो वी कैन कंसीडर, ठीक है। नाउ लास्ट part of this, now the management wants to display all the tables in school database, write the query to display the same। अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी टेबल्स डिस्प्ले करानी है उस डेटाबेस की, फॉर दैट विच कमांड वी आर हैविंग, शो टेबल्स कमांड, ठीक है। तो शो और टेबल्स, ठीक है। अब एक क्वेरी और बताते हैं आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज ट्रांसेक्ट, ठीक है। लेट्स इंसर्ट one or two rows in this, इसको let me change it to deposit, column count does not match value count at row 1, okay, T01 T02 deposit, let me just insert the values, insert into table name values, TR नंबर में हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं बेटा T02 लेट सपोज, ठीक है। इसमें वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी ऑलरेडी इंसर्ट हैं, ओनली 1 रो इज देयर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर क्यों नहीं इंसर्ट हुई बेटा, हमने ये DOT जो कॉलम है इसको हमने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से भी इंसर्ट नहीं करा सकते, लेट्स इरेज दिस। चेक कंस्ट्रेंट, अब क्या मिस्टेक हो गई, सेविंग्स, चेक कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल हो गई, हमने सिर्फ क्या दे रखा है बेटा, विड्रॉ एंड डिपॉजिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, 2 रोज हैं इसमें, अगर क्वेश्चन होता केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ही अगर ये पार्ट भी होता कि यू हैव टू डिलीट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, बट टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिलीट फ्रॉम एंड देन टेबल नेम, कोई कंडीशन नहीं लगाई है बेटा, दैट मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट हुआ है, दैट इज एज इट इज, बट मेरे टेबल में जो वैल्यूज हैं दैट इज डिलीटेड नाउ। सेम अगर आपने अपडेट करनी हो किसी कॉलम की वैल्यूज जो हर एक में सेम रखनी हो, विदाउट वेयर क्लोज लगा दो बेटा, सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, साथ में अपडेट हो जाएंगी। सो आई होप all these questions and concepts related to these questions are crystal clear now, okay। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस related to the chapter file handling, but still if you are having any doubt in this video or in any concept, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.